Good morning, students. Beta, we have completed up to question number 13 in last video. Now I am going to start the question number 14. What is in this? In this, beta, a shopkeeper sold sarees at rupees 266 each after giving 5% discount on labeled price. Means first he give the 5% discount on the marked price, and then he sell each साड़ी at 266. बट हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट, अगर उसने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको प्रॉफिट होता 12%. ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द कॉस्ट प्राइस. देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ीज? तो फर्स्ट बेटा, we don't know what is the mark price and what is the cost price. So let selling price of one saree is given to be 266 rupees. Let mark price of each saree is equal to rupees x. Mark price is rupees x. Mark mean whatever be the printed on that saree, MRP. Then he give the 5% discount on mark price, so x minus 5% of x. Then selling price was 266. It is given कि after giving a discount of 5% on the mark price, the selling price was 266. Now solve for x here. X minus 5 by 100x is equal to 266. So 100x minus 5, that is 95 by x upon 100, 266. And here you will get x is equal to 280. What is this x? It is mark price of साड़ी, जो साड़ी पे प्रिंट था, that is 280. ठीक है. And now if he had not given the discount and sell the साड़ी at 280, then he would earn a profit of 12%. If profit is 12%, then selling price should be mark price. No discount if there. Mark price is 280. So we don't know what was the cost price. Let cost price is rupees y. Then cost price y है तो profit 12% होता ना उसको, अगर वो discount नहीं देता तो profit is equal to 12% of y, that is 12y by 100. Now selling price is what? Cost price plus profit, y plus 12y by 100. Then this is 100 LCM, 100y plus 12, 112y upon 100 is equal to 280. Then y is equal to, यहाँ से y के लिए solve करो, 100 upon 112, that is 250. तो therefore cost price of साड़ी is 215. उसने 250 में खरीदी वो साड़ी, उस पर लेबल लगा 280 का. अगर वो 280 में ही सेल करता तो उसको 12% प्रॉफिट होता. अब उसने उस पर 5% डिस्काउंट दिया है, तो आफ्टर डिस्काउंट वो सेल हुई 266 की. 250 में परचेज किया और 266 में सेल किया. प्रॉफिट तो अब भी है, बट इफ़ यू सेल ऑन द मार्क प्राइस देन प्रॉफिट विल बी 12%. In this way, but it is the question number 14. Now what is question number 15? We कहता है Garima purchased a briefcase with an additional 10% discount on the reduced price after deducting 20% on the labeled price. क्या कहता है? गरिमा ने कोई ब्रीफकेस खरीदा है और उसको 20% तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट तभी मिल गया एट दैट टाइम, और आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, डिडक्टिंग 20% ऑन द मार्क प्राइस, फिर शॉपकीपर ने चलते वक्त उसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया. ठीक है. तो व्हाट यू हैव टू डू देन, इफ द लेबल्ड प्राइस वाज रुपीज 1400, देन व्हाट प्राइस डिड शी परचेज द ब्रीफकेस? तो फर्स्ट यू राइट द लेबल्ड प्राइस इज 1400, then 20% discount, 1400 minus 20% of 1400, and whatever be the cost, now additional discount is 10%. जो आएगा ना
1400 का 20% 128, वो माइनस करके अगेन 10% डिस्काउंट यू शुड गिव। ठीक है बेटा, तो यू ट्राई इट बाय योर ओन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट, ये कहता है ट्रेडर मिक्सेस 3 वेराइटीज ऑफ ग्राउंड नट्स कॉस्टिंग ₹50, ₹20 एंड ₹30 पर केजी। फर्स्ट जो ग्राउंड नट है वो ₹50 पर केजी, सेकंड जो ग्राउंड नट है वो ₹20 पर केजी, और जो थर्ड टाइप की है वो ₹30 पर केजी। और किस रेशियो में खरीदी हो? ₹50 केजी वाली 2x मीन्स 2x केजी, ₹20 पर केजी वाली जो ग्राउंड नट्स है वो 3x केजी, और जो जिसका रेट है ₹30 पर केजी दैट इज 4x kg because ratio is 2:3:4, and now mix all of them, and the mixture is selling price of the mixture is ₹33 per kg. Now we have to find the percentage of profit. So that I am solving on the board. Okay beta. Yes beta, this is the question. Let the trader bought 2x kg, 3x kg and 4x kg of ground nuts because it is given in 2:3:4. So this is the weight at rate of ₹50 per kg, ₹20 per kg and ₹30 per kg. It is given. Now the cost price is ₹50 पर kg, तो 2x kg खरीदी है, तो 50 into 2x, 20 into 3x and 30 into 4x. This is the amount, total amount of cost price. 280 x rupees is the cost price. And now selling price, कहता है the total mixture है, what is the weight of the mixture? 2 plus 3 6, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9x kg. He sells at ₹33 per kg. तो 9x kg मिक्सचर है और ₹33 पर kg के हिसाब से उसने सेल किया, तो सेलिंग प्राइस इज 297x. नाउ सेलिंग प्राइस इज 297x एंड कॉस्ट प्राइस इज 280x. सो प्रॉफिट इज देयर 297 minus 280 that is 17x. Then profit percent is profit upon cost price in 200. It will give you 6 and 1 by 14%. ठीक है बेटा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट. तो बेटे नाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर व्हाट इज नेक्स्ट 17. लेट अस चेक दैट. Question number 17 है बेटे, trader mark the price of his article so as to include a profit of 25%. A trader mark the price, उस पे मार्क करता है, MRP की लिस्ट लगाता है, to include a profit of 25%. वो इस तरह से मार्क करता है कि उसको 25% प्रॉफिट हो जाए, कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े, भाई इतने की है ये, इसमें 25% प्रॉफिट ऑलरेडी है. ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस. फिर क्या करता है, फिर जितना भी मार्क किया ना उस पर 16% डिस्काउंट भी दे देता है. तो व्हाट वाज इज एक्चुअल प्राइस, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है जितने में वो कॉस्ट प्राइस है दैट यू हैव टू टेल. तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन द बोर्ड, लिसन. तो बेटा इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, वी सपोज दैट इट इज क्वेश्चन नंबर 17. तो बेटा लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹100. देन मार्क प्राइस इज व्हाट, उसने उस पर लिखा क्या, 25% प्रॉफिट लगा के तब उसने उस पर लगाया है MRP.
100 प्लस 25% ऑफ 100 दैट इज़ 25, तो 125 उस पे मार्क प्राइस है। अब क्या किया उसने, अब 16% डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे, तो 16% डिस्काउंट ऑन MRP सॉरी मार्क प्राइस जो भी है, 16% ऑन 125, तो इसका ये आ जाएगा 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ डिस्काउंट लगा दिया 125। अब 125 पे 20 रुपीज़ छोड़ दिए उसने, तो 105 इज़ द सेलिंग प्राइस। पर प्रॉफिट तो अब भी है ना, उसने देखो कॉस्ट प्राइस तो 100 है और सेलिंग प्राइस 105, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 दैट इज़ 5%। अब भी उसको 5% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बेटा, यस बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। What is in this? A company sell a car with a mark price of rupees 2,72,000 and gives a discount of 4% on rupees 2 lakhs and 2.5% on the remaining amount. So what is the actual price charged by the company? Mean what is the selling price of the car? In this bit the mark price of car is 2,72,000 यानी कि 2 lakhs plus 72,000. तो what you have to do, you have to calculate the discount 4% on 2 lakhs and then 2.5% on 72. 4% of 2 lakhs plus 2.5% of 72,000, then total discount is there. Now subtract this discount from the 2,72,000. 2 lakhs का 4% और 72,000 का बेटे 2.5%, दोनों डिस्काउंट्स को टोटल करके सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 2,72,000। फर्स्ट डिस्काउंट तो आ जाएगा 8,000 और 72% का 2.5% आ जाएगा 1,800, देन 8,000 प्लस 1,800 इज 9,800, देन सेलिंग प्राइस इज व्हाट 2,72,000 minus 9,800 is equal to 2,62,200. This is the answer. Try it yourself. Next question, that is last question number 19. 19 में बेटा a shopkeeper purchased 150 calculators at the rate of rupees 250 each. भाई 150 कैलकुलेटर्स परचेज किए हैं, 250 का एक है, तो you can calculate the cost price of 150 calculators, 150 into 250. He spent an amount of 2,500 on transport and packing. अब ट्रांसपोर्ट में और पैकिंग में उसके लगे 2,500, ये भी ऐड कर दो सेलिंग प्राइस में। फिर ही फिक्स द लेवल प्राइस, अब उसने उस पर प्राइस तो चिपकाना है, भाई कितने का है एक, उसने 320 का एक सेल किया है, 320 उस पे लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर इज 320, बट उसने ये एक काम और किया है कि डिसाइडेड टू गिव ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द 320, तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो बेटे आई एम सॉल्विंग दिस ऑन द बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 वाज कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 कैलकुलेटर्स, 150 इंटू 250, बिकॉज एक की कॉस्ट प्राइस है ना 250, तो 150 इंटू दिस, और ये ट्रांसपोर्ट और पैकिंग चार्जेस ये भी उसी में ऐड कर दो, इट इज़ 40,000। तो उसको 150 कैलकुलेटर्स पड़े 40,000 के। अब उसने मार्क प्राइस लगाया 320 एक पे, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 5%। अब 5% डिस्काउंट देगा 320 पे, तो 16 रुपीज़ ऑफ हो गए, तो उसने एक कैलकुलेटर सेल किया 304 रुपीज़ का, 320 माइनस डिस्काउंट 304। अब एक कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस है 304, तो 150 की 304 इंटू 150 दैट इज़ 45,600। अब प्रॉफिट कितना हुआ, ये तो सेलिंग प्राइस है 45,600 और ये कॉस्ट प्राइस है
तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 5600 is the profit. So what is the profit percent? Profit upon cost price into 100, it will be 14%. So beta, in this way 8.2 is completed. I have solved almost all the questions. Practice them, and 8.3 is in the next video. Till then, thank you beta, bye.